Very good morning, students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. Right, dear students. Up to last class, we can discuss about ether, method of preparation of ether. How will you prepare ether? As well as we can discuss about some name reaction where we can we can discuss one important name reaction, that is Williamson synthesis. Now then, in very next class we can discuss about physical properties of ether. What are the different physical properties shown by ether? Either ether can form hydrogen bonding or not, what is the melting point, what is the boiling point, what will be the solubility, right, and what will be the state of ether. That all this stuff we can study it in previous video. Now today we can discuss about chemical properties of ether. So ether can show which type of chemical property, and here we also get one answer of question that why ether is a less reactive compared to अल्कोहल. अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है बट ईथर बहुत ही कम रिएक्टिव है. ऐसा क्यों है, उसका भी आंसर हमको इस वीडियो में हमको देखने को मिलेगा. So today we can start the chemical properties of ether, right? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज SR Academy of Chemistry. प्लीज भूलिए मत, मैं ऐसे तुम्हारे लिए और भी वीडियोस लाते रहूंगा. तो लेट्स बिगिन विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ether, right? So you can see we can discuss about the chemical properties of ether, right? So let's begin with the chemical properties of ether. Now in first reaction, we can discuss about laboratory test for ether. Now suppose we can, if you want to prove what is ether and what property it can be shown, हम लोग ये laboratory test कर सकते हैं. यहाँ पे तीन टेस्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा. First, you can see that ether is neutral in aqueous medium, means ether does not show any effect on pH paper. It is neutral. Second property you can study, ether do not react with base, cold dilute acid, reducing agent, oxidizing agent and active metal. Means ether can show less reactivity. It cannot react it with base, it cannot react it with dilute acid, it cannot react it with reducing agent, even it cannot react it with oxidizing agent, or it cannot react it with active metal. This proves that ether is very less reactive. But ether only reacts with cold concentrated sulfuric acid and it can form oxonium ion. Which ion it can form? Oxonium ion, means oxygen having 3 valency with positive charge is called as oxonium ion, and it can form salt. This reaction is used to distinguish ether from hydrocarbon. तो ये रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं ईथर और हाइड्रोकार्बन को डिफरेंशिएट करने के लिए, बिकॉज हाइड्रोकार्बन डज नॉट शो दिस रिएक्शन बट ईथर कैन शो दिस रिएक्शन. नाउ लेट्स सी हाउ द रिएक्शन कैन प्रोसीड. So here we can discuss about the laboratory test. First is ether is a neutral in aqueous medium, means when you dissolve ether with the aqueous medium it does not affect on litmus paper. मान लो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, सैंपल ले लिया ईथर, ठीक है. अब मुझे टेस्ट करना है, ये न्यूट्रल है, मुझे प्रूफ करना है. मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक पीएच पेपर ले लिया, राइट ना. एक मैंने क्या ले लिया, pH paper. When this pH paper can, suppose this pH paper is, sorry, we can take litmus paper. litmus से ज्यादा अच्छा होगा. We also use pH paper. पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं हम लोग, वहां पे रेंज रहता है. pH पेपर के कुछ कलर रहते हैं, सॉल्यूशन में डिप करने के बाद अगर वो रेडिश शेड देता है तो the compound is acidic. अगर वो ग्रीनिश शेड देता है तो ब्लूइश शेड देता है तो कंपाउंड क्या रहेगा, बेसिक. और अगर वो ग्रीनिश रहता है तो क्या रहेगा, न्यूट्रल. हम लोग दोनों टेस्ट करेंगे. लिटमस में दो तरह के पेपर होते हैं, एक क्या रहता है, रेड लिटमस पेपर, दूसरा क्या रहता है, ब्लू लिटमस पेपर, राइट. तो लिटमस दो तरीके के रहेंगे, एक तो रेड रहेगा, दूसरा क्या रहेगा तुम्हारा, ब्लू लिटमस पेपर. दोनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं. नाउ मान लो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया,
ठीक है, यहाँ पे मैंने ईथर ले लिया। अब इस ईथर में मैंने क्या डाला, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेड लिटमस पेपर डाला। यहाँ पे मैंने क्या किया, रेड लिटमस पेपर डाला। मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था, रेड लिटमस पेपर क्या रहा, रेडी रहा। फिर मैंने यहां से निकाल के इसको ब्लू लिटमस पेपर डाला, तो भी मैंने क्या देखा, ब्लू लिटमस पेपर भी क्या रहा तुम्हारा, ब्लू ही रहा, इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। फिर मैंने इसमें क्या किया, पीएच पेपर डाल दिया, तो पीएच पेपर डालने के बाद उसका कलर क्या था, ग्रीन। नाउ ये रिएक्शन क्या प्रूव करता है कि ईथर इज अ neutral in nature because it does not affected by the litmus paper as well as it does not affected by pH paper. pH paper भी कोई भी रोल नहीं कर रहा और litmus paper भी वहां पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रहा है. This reaction proves that ether is a neutral in aqueous medium. तो यहाँ तक बात समझ में आए, तो रेड रेड ही रहेगा, ब्लू ब्लू रहेगा, और यहाँ पे pH पेपर किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन. अगर पीएच पेपर का कलर रेड होता तो ये क्या प्रूफ करता, ईथर इज एसिडिक. अगर पीएच पेपर का कलर ब्लू होता तो क्या प्रूफ करता, ये क्या है, बेसिक. नाउ सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग. यहाँ पे ईथर डज नॉट रिएक्ट विथ बेस. ईथर बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है. ईथर डज नॉट रिएक्ट विथ बेस. एग्जाम्पल, अगर हम लोग बेस का एग्जाम्पल लेंगे तो क्या ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं NaOH, KOH, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा. ये सब किसके एग्जांपल्स है, तुम्हारे बेस के एग्जांपल्स है, राइट. नाउ उसके बाद इट डज नॉट रिएक्ट विद बेस, इवन इट डज नॉट रिएक्टेड विद कोल्ड डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट एसिड मींस here we can mix water with that acid, it is called as dilute acid. Even it does not reacted with reducing agent. Dilute acid में we just take the example of dilute hydrochloric acid, dilute sulfuric acid, dilute nitric acid, dilute acetic acid, etc. Reducing agent means we just take the example of lithium, aluminium hydride, sodium borohydride. These are famous reducing agent. Ether does not reacted with even reducing agent. Second, it does not reacted with oxidizing agent like KMnO4, K2Cr2O7, Na2Cr2O7, right? Chromic acid, CrO3. These are the oxidizing agent. तो ईथर इनके साथ भी रिएक्ट नहीं करता. इवन ईथर डज नॉट रिएक्टेड विद एक्टिव मेटल लाइक it does not reacted with sodium, it does not reacted with magnesium, aluminum, etc. Means we can say that ether does not show reactivity with the acid, it does not show reactivity with the base, it does not show reactivity with any of the oxidizing agent, or it does not show reactivity with any of the basic reagent, right? Why this can happen? Because if you see the structure of ether, you can observe that in ether, you just see here in ether ROR bond are present, and this ROR bond are strong. If you compare with the alcohol, in alcohol weak, in alcohol here weak OH bond are present, right? यहाँ पे weak OH bond है, but this bond is strong bond because that's why it cannot break easily. But alcohol में ये OH bond क्या रहता है, weak रहता है, और weak bond होने के कारण it can be break easily. वो bond easily क्या हो जाता है, break हो जाता है, and hence ether does not show reactivity. Second point clear हुआ. Third point पे आते हैं हम लोग यहाँ पे. But ether somewhat reacted with, third and very important point, ether reacts with cold concentrated sulfuric acid, right? Here I just take the example of concentrated, means ether does not reacted with dilute acid, but ether can reacted with cold concentrated sulfuric acid. Ether sulfuric acid के साथ react करता है. Now on reaction, what happened here? Suppose we just take one ether ROR. Now we know that oxygen having two lone pair, when it reacted with sulfuric acid, that is
H2SO4. Now इस H2SO4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? If you see the actual structure of sulfuric acid, the actual structure of sulfuric acid is this. Now सब लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक पॉइंट. अब ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, इट कैन टेक H प्लस आयन. ऐसे लेगा तो ये बॉन्ड का शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ पे क्या मिलेगा? ROR. अभी ऑक्सीजन ने क्या ले लिया यहाँ पे? हाइड्रोजन. तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? H. अब इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन की वैलेंसी बढ़ गई. सपोर्ट करने के लिए कौन आ रहा है? एक ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन. अब क्या मिलेगा? HSO4. HSO4 क्या आ जाएगा तुम्हारा? माइनस. क्या आ जाएगा तुम्हारा? माइनस. तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एनायन हो गया. नाउ दिस सॉल्ट इज कॉल्ड एज ऑक्सोनियम सॉल्ट. ये सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सोनियम सॉल्ट. मींस व्हेन ईथर रिएक्टेड विद cold concentrated sulfuric acid, it can take H plus ion proton from the sulfuric acid and can form corresponding oxonium salt. This reaction proves that ether showing small reactivity in presence of concentrated. वहां पे हमने क्या लिखा था? dilute acid के साथ react नहीं करता, but ether can react with concentrated acid. अब ये reaction का use क्या होता है? This reaction is used to differentiate हाइड्रोकार्बन एंड ईथर. हाइड्रोकार्बन ये रिएक्शन शो नहीं करता, ईथर ये रिएक्शन शो करता है. तो these are the certain laboratory tests we can carry out for the ether. First is neutral test, that is it cannot reacted with litmus paper as well as pH. It does not show any color change, that's why it is a neutral. Second, it cannot reacted with base, it cannot reacted with dilute acid, it cannot reacted with oxidizing agent, it cannot reacted with reducing agent, even it cannot reacted with the metal. उसके साथ भी react नहीं करता है. It only show reactivity with the cold concentrated acid and form corresponding oxonium salt. So this is the first reaction, that is laboratory test. I hope you can understand the reaction. So next reaction we can discuss about, that is reaction involving alkyl group of ether, where in this reaction the hydrogen atom of R group, matlab carbon, can involve. Here we can see this PPT. Here when when ether reacted with oxygen, right? When oxygen are long exposure with the ether, it can form peroxide linkage. क्या फॉर्म करता है? पेरोक्साइड लिंकेज, राइट? सो दिस इज द रिएक्शन. हियर ओनली हाइड्रोकार्बन parts can be involved. We just see the reaction. Here we just take the example of diethyl ether, where oxygen when exposed with a long contact with the air, the oxygen can insert between the CH bond, right? And it can form one linkage is called as peroxide linkage. And this peroxide are hazardous substance. They decompose violently at high temperature and it can produce adverse effects. Now let's see how the reaction can be carried out. So here we can see, suppose we just take one ether, CH3 CH2O CH2 CH3. When it exposure with oxygen for long time, exposure with air. Air means oxygen. Now here what happened? We just write this molecule in this way, CH bond. ऐसा लिख सकते इसको हम लोग CH bond को. अब क्या होगा? When in presence of long time exposure with air, क्या होगा? This oxygen can insert between this CH bond. CH bond के बीच में क्या हो जाएगा? Insert हो जाएगा. Now यहाँ पे मुझे जो कंपाउंड मिलेगा क्या मिलेगा? अभी CH3CH OOH या ऑक्सीजन, हियर CH2CH3. क्या मिला? ऑक्सीजन CH2CH3. नाउ ये जो लिंकेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है, दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज peroxide linkage. इस लिंकेज को क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड. नाउ हियर यू जस्ट ऑब्जर्व which alkyl group, which group is used? Only carbon hydrogen bond are used, oxygen does not involve. That's why it comes this category, that is reaction involving alkyl group of
ethers, right? I hope you can understand simple सा examples है now. इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा important है, जहां पे हम लोग देखेंगे reaction involving cleavage of CO bond, जहां पे हम लोग किसका क्लीवेज करेंगे, CO bond का क्लीवेज करेंगे. तो I hope you can understand this reaction. If you feel any difficulty, please contact me, right? Now next reaction is reaction involving CO bond, breaking of CO bond. You just see here, we just break this CO bond. So which type of compound it can form after breaking of CO bond? तो यहाँ पे हम लोग पहला reaction देखते हैं. First reaction with hot dilute sulfuric acid. Now what happened when ether reacted with hot dilute sulfuric acid? Which product we can obtain? Let's see here. Now first reaction, when ether is heated with the dilute sulfuric acid, it undergo hydrolysis and form alcohols or phenol. Means in this reaction, when we treat ether with the dilute sulfuric acid, it can form corresponding alcohol, right? Now in this reaction, either it can form two same alcohol, two different alcohol, one phenol, one alcohol. इसमें से कुछ भी form हो सकता है. Now let's see your examples. So reaction with hot dilute sulfuric acid. So we just take one simple example, ROR. Now when it treated with hot dilute sulfuric acid, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया dilute. Dilute means क्या होता है? Means it consists of water molecule. So हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस H2O. अब सर H2O कहाँ से है? बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लक्स करते हैं, राइट? हॉट करना मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा. तो अब क्या होगा, ये जो तुम्हारा H2O मॉलिक्यूल है, हमको पता है इसको डिसोसिएट करेंगे तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर इसको चार्ज दे तो इस पे H प्लस, इस पे क्या आ सकता है, OH माइनस आ सकता है, ठीक है? RO, R मतलब क्या रहता है, सिंपली वी कैन से इट इज कार्बन और ऑक्सीजन. मुझे बताओ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में से ज्यादा पोलर कौन है, ऑक्सीजन है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है. तो जब हम लोग बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, ऑब्वियसली किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे. पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, ऑब्वियसली कार्बन पे. तो दे दो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव, आर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज. अब अगर मुझे वाटर को यहाँ पे ऐड करना है तो मुझे ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा. अब कोल किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इट कैन बी कम्स टुवर्ड द ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे H प्लस आन दे देंगे, यहाँ पे R प्लस इसके पास क्या जाएगा, OH माइनस चले जाएगा. इस तरीके से हो जाएगा ना. रिएक्शन क्या होगा, ROH, पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ROH प्लस, यहाँ पे क्या मिला, सपोज इट इज R डैश प्लस R डैश OH. मींस हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब भी हम लोग ईथर को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट कैन फॉर्म two molecule of same or different alcohol. क्या मिलेगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट अल्कोहल हमको यहाँ पे मिल सकता है. नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देखते हैं. सपोज हम लोग क्या लेते हैं, सिमेट्रिकल ईथर लेते हैं. इसको मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट. क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा, अभी कोई भी बॉन्ड ब्रेक करो कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा. क्या प्रोडक्ट मिलेगा फाइनली अपने को, यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3CH2OH. नाउ कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, दो मॉलिक्यूल, मतलब दोनों अल्कोहल क्या मिला अपने को, सेम मिला. क्यों सेम मिला है, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, सिमेट्रिकल ईथर. एक बात दिमाग में डाल लो, अगर हमारा ईथर सिमेट्रिकल है और हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट कैन फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम अल्कोहल. यहाँ पे अल्कोहल के दोनों मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, यहाँ पे सेम रहेंगे, उसमें चेंज नहीं आएगा. तो एक चीज क्या ध्यान में रखना है, व्हेन ईथर कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, it produce two molecule of same alcohol. यहाँ पे दो सेम अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या होंगे तुम्हारे, प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, यहां तक दिमाग में आया, राइट? अब यहाँ पे अगर हम लोग देखो एक और एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH
CH3O CH3। इसको अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, अगर मान लो मैंने इसको बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या आएगा, HOH आ जाएगा। क्या मिलेगा अपने को प्रोडक्ट, CH3CH CH3OH प्लस क्या मिलेगा, CH3OH। नाउ वी आल्सो गेट टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, बट दोनों अल्कोहल क्या है, सेम है कि डिफरेंट है, ऑब्वियसली डिफरेंट है। ये अल्कोहल डिफरेंट है, ये अल्कोहल डिफरेंट है। ये प्रोपेंटुऑल है और ये क्या तुम्हारा मिथेनॉल है। ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज द ईथर वी कैन यूज इज अनसिमेट्रिकल। ईथर कैसा है तुम्हारा, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है। तो जब तुम्हारा ईथर अनसिमेट्रिकल रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलेगा, अल्कोहल। और जब ईथर सिमेट्रिकल रहेगा तो क्या मिलेगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, बट दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जब अनसिमेट्रिकल रहेगा तो दोनों अल्कोहल क्या रहेंगे तुम्हारे, डिफरेंट रहेंगे। नाउ वी जस्ट टेक द थर्ड एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज वी जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ OH, phenol OCH3. It's the example of anisole when reacted with H2O in presence of dilute H2SO4 on heating. अब यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दो, HOH, क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड डबल डबल, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH प्लस क्या मिलेगा, CH3OH। सर आपने एक बॉन्ड क्यों ब्रेक किया, बिकॉज हमेशा देखो बेटा वीक बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। पहली बात, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है तुम्हारा, sp2। ऊपर से क्या है, इसके पास लोन पेयर है, ड्यू टू कॉन्जुगेशन या पार्शियल डबल बॉन्ड भी आ जाता है, and that's why this bond is stronger। और ये बस में क्या रहता है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड लेंथ क्या है यहाँ पे ज्यादा है, मतलब ये बॉन्ड वीक है करके ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और हमको क्या मिलेगा, एक तो फिनॉल मिलेगा और एक क्या मिलेगा यहाँ पे, इथेनॉल। तो मुझे दो डिफरेंट टाइप के क्या मिले यहाँ पे, अल्कोहल। ओवरऑल अगर हम लोग क्या करते हैं, ईथर को हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। अब इसका ओवरऑल हम लोग एक बार समरी देख लेते हैं। इस रिएक्शन में अगर मैं क्या कर रहा हूं, ईथर को हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, सपोज कंडीशन ROR, वेयर R इज इक्वल टू R डैश ले लेता, ऑन हाइड्रोलिसिस H2O डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या मिलेगा, ROH, 2 molecule। now R dash where R is not equal to R dash, सेम कंडीशन अप्लाई करो, यहाँ पे क्या मिलेगा, ROH प्लस R dash OH। थर्ड कंडीशन ROAR, क्या मिलेगा, ROH प्लस AROH। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख सकते हैं, जब भी हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो जब भी हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या दिख रहा है, अगर तुम्हारा ईथर सिमेट्रिकल है तो ऑन हाइड्रोलिसिस विद द डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट एसिड इट कैन गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम अल्कोहल। अभी डिपेंड्स करता है, आर ग्रुप तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। यहाँ पे अगर दोनों आर ग्रुप डिफरेंट है तो हमको क्या मिलेंगे, 2 अल्कोहल, वो भी दोनों क्या रहेंगे तुम्हारे यहाँ पे, डिफरेंट। और अगर मान लो तुम्हारे ईथर में एक क्या एरोमेटिक रिंग है तो हमको क्या मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, फिनॉल। ये चीज का तुमको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, एकदम इजी रिएक्शन है, CO बॉन्ड को ब्रेक करो और ईथर को 2 अल्कोहल में कन्वर्ट करो, दिस इज द रिएक्शन, राइट। तो दिस इज रिएक्शन वेयर we can use hydrolysis of ether. Ether on hydrolysis can produce alcohol. Alcohol may be, both the alcohol may be same, it may be different, one may be alcohol, one may be phenol, depends on the ether we can use for the reaction.
राइट। तो ये रिएक्शन यहाँ पे तुमको समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे वाले रिएक्शन के ऊपर बढ़ते हैं, राइट। यहाँ पे भी हमको क्या देखना है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिएजेंट को चेंज करेंगे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट रिएक्शन। Now let's start with the next reaction. Reaction with PCl5. हमने ये PCl5 को ऑलरेडी डिस्कस किया था। कहाँ पे, अगर तुमको याद आ रहा होगा तो हमने ये PCl5 को डिस्कस किया था जब हमने क्या पढ़ा था, अल्कोहल। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, अल्कोहल। तो हमको क्या मिला था, जब अल्कोहल को हमने PCl5 के साथ रिएक्ट किया तो वी कैन ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड with elimination of phosphorus oxychloride as a byproduct। अब यहाँ पे हमको क्या मिलता है, देखो, just see the reaction। Suppose मैंने ईथर लिया ROR। अब ईथर को मैंने किसके साथ रिएक्ट किया, PCl5 के साथ रिएक्ट किया, इसको मैंने रिफ्लक्स किया, मतलब मैंने इसको क्या किया, हीट। हीट का हम लोग दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं, रिफ्लक्स। So when ether reacted with PCl5, it can form two molecule of alkyl halide or two molecule of alkyl chloride with elimination of phosphorus oxychloride as a byproduct। हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, RCl plus POCl3, alkyl chloride plus phosphorus oxychloride as a byproduct मिलेगा, राइट। अब एग्जांपल्स अगर हम लोग लेते हैं, CH3 CH2 CH2O CH2 CH3 प्लस PCl5, इसको अगर हम लोग रिफ्लक्स करते हैं तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2Cl प्लस CH3 CH2Cl प्लस POCl। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ईथर क्या ले लिया, अनसिमेट्रिकल लिया, तो मुझे दोनों अल्काइल हैलाइड क्या मिलेंगे, अल्काइल क्लोराइड क्या मिलेंगे, डिफरेंट, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, POCl। मान लो मैंने और एक एग्जांपल लिया, CH3CH CH3O CH CH3CH3 on reaction with PCl5 on refluxing we can get CH3CH CH3 Cl 2 molecule plus POCl3। तो यहाँ पे मैंने जब सिमेट्रिकल यूज किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिला, यहाँ पे अल्कालाइड, सेम अल्कालाइड प्लस POCl3। अब रिएक्शन को याद कैसे रखना है, देखो सिंपल है, याद रखने का तरीका बताता हूं, बाद में इसका मैकेनिज्म देखेंगे। जब रिएक्शन को तुमको याद रखना है तो क्या करना है, देखो अपने पास क्या प्रेजेंट है, PCl5 है, Cl 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 Cl, राइट। क्या करना है, ये बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये एक Cl लेके चले जाएगा, ये बॉन्ड को ब्रेक हो जाएगा, ये दूसरा Cl लेके चले जाएगा, बचा क्या तुम्हारे पास, तो यहाँ पे क्या मिला, CH3CH CH3Cl, ये मिला CH3CH CH3Cl, ये मिला, प्लस बचा क्या, POCl3। यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस रिएक्शन को याद कैसे रखना है, मेमोराइज कैसे करना है। तो ये तुम्हारा ईथर है, इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे लेट्स सी, इसको रिएक्ट करें किसके साथ, PCl Cl 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 Cl, कितने हो गए, 6 हो गए, ज्यादा हो गए, ये PCl5 हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक Cl जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक Cl जाएगा। नाउ हमको पता है ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट, राइट, ऑक्सीजन क्या है तुम्हारा, डाइवैलेंट है, राइट। तो एक ऑक्सीजन जब कंज्यूम होगा तो वहां पे 2 क्लोरीन, बिकॉज़ क्लोरीन इज अ मोनोवैलेंट, ये एक ही वैल्यू से शो करता है, 2 वैल्यू से शो करता है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ से क्लोरीन लेके चले जाएगा, ये जो पार्ट है इसको मिल जाए, ये जो पार्ट है यहाँ से क्लोरीन लेके चले जाएगा, तो क्या मिलेगा, CH3CH Cl CH3 मिला, ठीक है। और यहाँ पे फास्फोरस क्या ले लेगा, ऑक्सीजन, तो PO3Cl क्या मिलेगा, Cl3, तो तुमको प्रोडक्ट क्या मिला, दिस वन।
तो ये सब तुमको याद रखने के लिए, बट एक्चुअली में मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअल मैकेनिज्म अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टडी करेंगे। ओवरऑल हमको क्या याद रखना है, जब भी हम लोग ये जो तुम्हारा ईथर है, ईथर को जब भी हम लोग PCl5 दैट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इट कैन प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल विद एलिमिनेशन ऑफ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट। नाउ अब यहाँ पे देखो तुम्हारा रिएक्शन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैं इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, अभी एक्चुअली में रिएक्शन कैसे हो रहा है। सो हियर यू कैन सी द मैकेनिज्म। हम लोगों ने सबसे पहले क्या ले लिया, ROR, ये मेरा क्या लिया मैंने, ईथर ले लिया, राइट। अब इस ईथर को मैं सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करूंगा, PCl5 ना, मुझे PCl5 का स्ट्रक्चर पता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, PCl Cl Cl P Cl 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 एंड Cl, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां पे ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है ना। ये जो तुम्हारा, लेट्स सी हियर द मैकेनिज्म। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किस पे अटैक कर रहा है, दिस लोन पेयर कैन अटैक ऑन फास्फोरस। फास्फोरस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RO। ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, दूसरा R ग्रुप प्रेजेंट है। ऑक्सीजन किसको अटैच हुआ है, फास्फोरस को। फास्फोरस को जब अटैच हुआ है तो यहाँ पे जब इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। क्या बन के बाहर जाएगा, Cl-। अब यहाँ पे बचा क्या, फास्फोरस प्लस, कितने क्लोरीन बचे, 4, लिख दो, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आएगा, मैंने ऑलरेडी अल्कोहल में बताया था, बिकॉज ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई, यहाँ पे 3 हो गई, बराबर है। जब वैलेंसी बढ़ जाता है तो हम लोग क्या देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देंगे। अब क्या होगा, ये जो तुम्हारा Cl- है, ये Cl- यहाँ से क्या करेगा, R पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड वापस से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, RCl, पहला हल्का हैलाइड मिला, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है यहाँ से, नहीं दिखेगा। बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, P, यहाँ पे क्या निकलेगा, एक Cl, और यहाँ पे क्या निकलेगा, OH, यहाँ पे Cl 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 Cl। मींस ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ का जो क्लोरीन है ये रिप्लेस हो रहा है और तुमको वहां पे क्या आ रहा है, OH ग्रुप आ रहा है, सॉरी नॉट OH, OR ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, याद हुआ ना। उसके बाद क्या होगा, अभी रिएक्शन में क्या होगा तुम्हारा, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ, अब ये जो तुम्हारा ईथर है देखो, ये OR बॉन्ड है, बराबर है। अब ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, फिर लोन पेयर प्रेजेंट है। अब इस केस में क्या होगा, ये जो तुम्हारा लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देगा पीओ बॉन्ड के बीच में। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो, यहाँ से क्लोरीन फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर चले जाएगा, बराबर है। वहां से क्लोरीन बाहर गया तो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखो, फास्फोरस है, 3 क्लोरीन बचे उसके पास, Cl Cl Cl, राइट। यहां से जो क्लोरीन निकला है वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Cl- लिख सकते हैं, बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या बचा है तुम्हारे पास, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, अब बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज आने का रीजन क्या है, बिकॉज ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई, यहाँ पे 3 हो गई। अब क्या होगा, ये जो Cl- है, Cl- किस पे अटैक करेगा, R पे, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, RCl, क्या मिला, RCl, सेकंड मॉलिक्यूल, प्लस यहाँ बचा क्या, फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, P डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या बचा, Cl Cl एंड Cl, इट इज कॉल्ड एज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पे लिख लेता इसको मैं, P, यहाँ पे डबल बॉन्ड O,
और इसके पास क्या बचा, Cl। तो हमने जब ये रिएक्शन किया था तो क्या मिला था, RCl प्लस POCl3। तो दैट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म दैट कैन टेक्स प्लेस। एक बार फिर से देखो, अल्कोहल के लोन पेयर ने, सॉरी ईथर के लोन पेयर ने किस पे अटैक किया, फास्फोरस पे अटैक किया। जैसे फास्फोरस पे अटैक किया, क्लोरीन यहां से बाहर गया, ऑक्सीजन ने फास्फोरस के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ऑक्सीजन की वैलेंसी बढ़ गई करके इस पे चार्ज क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। इसको मिनिमाइज करने के लिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिया आर पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन उस पर अटैक करके पहला अल्काइल हैलाइड बना। देन यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, क्लोरीन इज रिप्लेस बाय, वो रिप्लेस हुआ, ये अल्कोक्सिल ग्रुप वहां पे रिप्लेस हुआ है, क्योंकि आर के साथ क्या आ गया, Cl, तो ये ग्रुप क्या हुआ, क्लोरीन को रिप्लेस किया ना। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, फिर उसने क्या किया, फास्फोरस पे अटैक किया, एक क्लोरीन यहाँ से बाहर गया, फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में क्या गया, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑलरेडी आर से अटैच है, तीन वैलेंसी हो गई करके क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, आर पॉजिटिव आ जाएगा, Cl माइनस इस आर पे अटैक करके दूसरा अल्काइल हैलाइड प्लस फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से तुम्हारा रिएक्शन होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आए, एक बार वीडियो को पॉज करो और उसको बार बार देखो, ऑब्वियसली तुमको समझ में आ जाएगा, राइट। सो आज हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे रिएक्शंस को। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे यही सेम रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, बट वहां पे हम लोग किसके साथ करेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। The reaction is very important, so please don't miss the next video। ये भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, बट उसमें कुछ रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज संजय रॉय एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री, और हम लोग बोल सकते हैं SR एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री, राइट। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।